Namaskar, welcome to Finance Lecture, and today we are going to discuss about SEBI, SEBI, Securities and Exchange Board of India. In today's video lecture, we will discuss about introduction of SEBI, reasons or causes for the establishment of SEBI, and after that we will discuss objective and functions of SEBI. Now the question arises, what is SEBI and when did it establish? If we talk about markets, there are mainly two types of markets: money market, in which short-term securities are dealt, and RBI is a regulator of money market. But SEBI is regulator of capital market, in which long-term securities are transacted. Therefore, we can say that SEBI is regulator of capital market. Now, the question arises, when did SEBI establish? SEBI की स्थापना कब हुई? SEBI was established by Government of India on 12th April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security market and for investors protection, and it was established under Ministry of Finance. After that, SEBI was given a statutory status on January 30, 1992 through an ordinance. Finally, SEBI got statutory status on 12th April 1992 through an act, SEBI Act 1992. कहने का मतलब 1992 में SEBI एक्ट पार्लियामेंट से पास होने के बाद SEBI को पूर्णतः एक स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल स्टेटस प्राप्त हो गया। SEBI का हेडक्वार्टर मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं। SEBI के बारे में यदि हमें डिटेल से जानना हो तो हम वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.sebi.gov.in. Now the question arises, how SEBI is managed? SEBI is managed by its members, which consist of the following members. The first is the chairman is nominated by Government of India. Second, two members, officers from Union Finance Ministry. One member from RBI. Remaining 5 members are nominated by Government of India. Out of them, at least 3 shall be whole-time member. Now the question arises, what is the main cause for the establishment of SEBI? Let us discuss few points. The first point is tremendous growth of capital market during 1980s. 1980 के दशक में कैपिटल मार्केट का अत्यधिक विकास हुआ, जिसके कारण यह ज़रूरत महसूस की गई कि एक कैपिटल मार्केट में एक रेगुलेटर का होना ज़रूरी है। लेकिन उस दौरान बहुत तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी देखने को मिले। वैरायटी ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज, ब्रोकर्स, merchant bankers, investment consultants, etc. And that the examples, the glaring examples of malpractices are unofficial private placements, rigging of prices, hera-pheri, rigging means hera-pheri, rigging of prices, non-adherence of provision of Company Act, violation of rules and regulation of a stock exchange, delay in delivery of shares. तो उस वक्त हम देखें कैपिटल मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, एक ट्रांजैक्शन को करने में 1 से 2 महीने लग जाते थे, क्योंकि उस टाइम में ऑनलाइन नहीं था।
ऑफलाइन था, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे थ्रू पोस्टल, थ्रू मेल, चिट्ठी के द्वारा होते थे, तो इसलिए इतना वक्त लगता था। और इसके बावजूद उस समय कीमतों में हेरा फेरी, और बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे थे जो कि उस समय जो कंपनी एक्ट 1956 था उसके रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन कर रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि क्यों ना एक रेगुलेटर की स्थापना की जाए जो कैपिटल मार्केट में रूल्स रेगुलेशन के बारे में ख्याल रखेगा तथा कैपिटल मार्केट के संचालन की बात करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखें तो उस समय जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे, इसी कारण जो निवेशक थे उनके कॉन्फिडेंस में कमी हो गई, उनकी बहुत सारी शिकायतें बढ़ने लगी, मल्टीपल इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। और उस समय के जो भी हमारे पास कानून मौजूद थे वो कानून सफिशिएंट नहीं था कैपिटल मार्केट को संचालित करने के लिए। इन सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है, द मेन कंक्लूजन इज दैट द कैपिटल मार्केट वॉज ग्रोइंग but with unfair trade practices, and investors were losing confidence. Therefore, that were the main reason for the establishment of SEBI. यदि सेबी के रोल की भूमिका की बात करें ब्रीफली, तो सेबी की 3 भूमिका है। पहली भूमिका कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी को इशू करते हैं, जारी करते हैं। दूसरी भूमिका निवेशकों के लिए है, और तीसरी भूमिका जो निवेशक और कंपनी के बीच इंटरमीडियरी का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। अब सवाल है कि तीनों के लिए अलग अलग भूमिका में क्या रोल क्या है। तो कंपनी के लिए सेबी की स्थापना के बाद एक ऐसा मार्केट मिल गया जहां से वो फंड एकत्रित कर सकते थे। दे कैन रेज फाइनेंस इन ईजी एंड एफिशिएंट मैनर। आसानी से और कुशलता से फंड एकत्रित कर सकते थे कंपनियां। लेकिन इन्वेस्टर्स, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय उनके साथ जो कि उनके कॉन्फिडेंस जो कि काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस का काफ़ी वायलेशन हो रहा था एंड ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सेबी की स्थापना के बाद इन्वेस्टर्स को उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई, साथ ही साथ उनके जो भी इंटरेस्ट थे उनके हितों का ध्यान रखा गया, और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए एक्यूरेट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने की बात की गई। उसके बाद इन्वेस्टर्स को जो कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सच्चाई के बारे में पता चला, क्योंकि सेबी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को मैंडेटरी कर दिया। इसके अलावा हम बात करें इंटरमीडियरीज की, तो इंटरमीडियरी जो इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में होते हैं, ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं, उनमें प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया। अब वो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते थे, और गवर्नमेंट ने उनके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान की। तो अभी हमने बात किया ब्रीफली कि सेबी की मुख्य 3 त्रिआयामी भूमिका हैं। एक कंपनी के लिए, दूसरा इन्वेस्टर निवेशक के लिए, और तीसरा मध्यस्थ के लिए। अब हम बात करेंगे कि सेबी का क्या उद्देश्य है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। यदि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। यदि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो सेबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखें, साथ ही साथ सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, इसके अलावा
कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए सेबी जो कि अपने स्टेप्स ले सके। अब हम बारी बारी से इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट ऑर्डरली फंक्शनिंग। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार सही तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस सेबी फ्रेम करती है। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स टू गाइड एंड एजुकेट देम। जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, क्योंकि कैपिटल मार्केट में 1980s और 1980s के दौरान बहुत तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे। तो इसलिए सेबी का दूसरा उद्देश्य है इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखना, लेकिन इन्वेस्टर्स को साथ ही साथ एजुकेट करना ताकि वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो सके। साथ ही साथ उनको गाइड करना कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इन्वेस्ट करना है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सेबी ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं और जो कंपनी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है, दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन एंड द रूल्स फ्रेम्ड बाय सेबी, दोनों में परस्पर सामंजस्य हो। जो कंपनी रूल को फॉलो कर रही है और सेबी ने जो रूल बनाया है, उन दोनों में एक प्रॉपर सामंजस्य हो। पूंजी बाजार में जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का बढ़ावा मिले, और सेल्फ रेगुलेशन और सेबी रेगुलेशन में दोनों में संतुलन स्थापित किया जा सके। ये तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा विथ अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। यानी कि कैपिटल मार्केट को सही रूप से संचालित करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना ताकि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो। इसके साथ साथ जो पूंजी बाजार है उनमें प्रतिस्पर्धा आ सके, कॉम्पिटिटिवनेस आ सके, उनमें प्रोफेशनलिज्म आ सके। इन सब उद्देश्य के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं कि सेबी के मुख्य कार्य क्या है। सेबी के कार्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला रेगुलेटरी फंक्शन, सेकेंड डेवलपमेंट फंक्शन एंड थर्ड इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि सेबी की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए स्थापना की गई थी ताकि कैपिटल मार्केट सही तरीके से संचालित हो सके, और उसको संचालित करने के लिए जरूरी था प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। और वो रूल्स रेगुलेशन कंपनी के लिए भी बहुत ज़रूरी था, इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी था, और इंटरमीडियरी के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसलिए सेबी का सबसे पहला कार्य है रेगुलेटरी फंक्शन, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हो, कंपनीज का कैसे रजिस्ट्रेशन हो, ब्रोकर्स का कैसे रजिस्ट्रेशन हो, सब ब्रोकर्स का कैसे रजिस्ट्रेशन हो। सब ब्रोकर वो होते हैं जो ब्रोकर के अंदर काम करते हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन हो, इसलिए ताकि हम एक ऑथराइज्ड पर्सन से हम जो कि ट्रांजैक्शन कर सके और इन्वेस्टर्स को धोखाधड़ी ना हो और पूंजी बाजार सही तरीके से चल पाए। तो सबसे पहला जो है रेगुलेटरी फंक्शन, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि रजिस्ट्रेशन, रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड टू ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। इसके बाद पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस के लिए रेगुलेशन की बात की गई। अंडरराइटर्स जो शेयर को बिकवाने की जिम्मेवारी लेता है उसे हम अंडरराइटर कहते हैं। मर्चेंट बैंकर जो एक तरह से कमर्शियल लोन्स और जो भी इन्वेस्टमेंट या कंसल्टेंसी एडवाइस देने के लिए होते हैं मर्चेंट बैंकर्स, उनके लिए रेगुलेशंस बनाना सेबी का मुख्य कार्य है।
इसके अलावा यदि कंपनी बिडिंग करती है, टेक ओवर बिडिंग करती है, तो उस बिडिंग करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन हो, ये भी सेबी फ्रेम करती है। इसके अलावा सेबी जो है इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनका प्रॉपर तरीके से ऑडिट करना, उन जो भी क्वेरीज हैं इन्वेस्टर्स के, उनकी क्वेरी करना स्टॉक एक्सचेंज से, ये भी उनका मुख्य काम है, रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पहले चार्जेस का कोई एक प्रॉपर चार्ज नहीं था, तो सेबी ने रेगुलेशन जारी करके जो भी ट्रांजैक्शन फ़ी थे उसको इम्प्लीमेंट किया। एक प्रॉपर इकोनॉमिकल फ़ी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिकली हम बात करें रेगुलेटरी फंक्शन में, रजिस्ट्रेशन, रूल्स रेगुलेशन की बात की गई, और उस रूल्स रेगुलेशन में बिडिंग, ऑडिट, फी, इन सब की बात की गई, इनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस की बात की गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, विकास कार्य। अब सवाल यह है कि पूंजी बाजार का विकास कैसे हो, तो उनमें जो ब्रोकर्स हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इंटरमीडियरी जो मध्यस्थ हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर हो, और जो भी इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरत की, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो उनके लिए जो भी ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन पब्लिश हो, ताकि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उपयोगी हो सके। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के विकास करने के लिए जो भी उपाय हैं वो सेबी कदम उठाती है, कार्य करती है। तीसरा और आखिरी जो मुख्य कार्य है वो सेबी का, वह है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सुरक्षात्मक कार्य। प्रोटेक्ट किसके लिए, किसको? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सेबी ने क्या किया? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, पाबंदी लगा दी सेबी ने कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, फ्रॉड ना हो, उसके लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशन फ्रेम कर दिया। साथ ही साथ 1980s के दशक में इनसाइडर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहे थे, कंपनी के इनसाइड इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा करके ट्रेडिंग करना, इनसाइडर ट्रेडिंग, दैट इज़ नॉट लीगल। तो इससे इन्वेस्टर डीमोटिवेट होंगे इनसाइडर ट्रेडिंग से, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए भी सेबी ने पेनल्टी की व्यवस्था की। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेबी समय समय पर अलग अलग रूल्स जारी करते रहती है, और बहुत सारे रूल्स उन्होंने फ्रेम भी किया हुआ है। इसके अलावा सेबी कैपिटल मार्केट के लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी फेयर प्रैक्टिसेस के लिए जो भी ज़रूरी है, उसके लिए हमेशा कटिबद्ध रहती है, अपने कार्यों को संपादित करती है। हमने देखा आज कि सेबी मुख्य रूप से 3 तरह के कार्यों को संपादित करती है। रेगुलेटरी फंक्शन, नियामक कार्य, डेवलपमेंट फंक्शन, विकास कार्य, तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन, सुरक्षात्मक कार्य। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने यह समझने का प्रयास किया कि सेबी की स्थापना किन कारणों से हुई, उनके क्या उद्देश्य हैं, और उनके 3 मुख्य कार्यों के बारे में हमने जिक्र किया। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।